Okay, see, in the last lecture, we were solving the numerical which are based on the Nernst equation, correct? Numerical which are based on the Nernst equation. And I just tell you all what is the Nernst equation. E equal E cell equal to E0 cell minus 0.0592 upon n log to the base 10 concentration of the product divided by the concentration of the reactant, correct? And we know that when we have to use the Nernst equation, if our cell is not in the standard condition, we have to use the Nernst equation to calculate the cell potential if our cell is not in the standard condition. In the last lecture, we have done the two numerical based on it. Now I'll just go for the one more numerical of this type. And the numerical is, 1 minute. Question number 1, fifth. Question number 1, fifth. And page number is 117. See, I'll just write down the numerical. What they've said, see, they have given the equation. Sorry, they have given the here for the cell. For the cell, and they have given the cell here, the Pb in the solid state in contact with Pb2 plus having concentration 1 molar. Correct. Salt bridge, and then we are having Ag plus having concentration 1 molar in contact with Ag and in the solid state. This is the cell. Now we know that in this cell, the concentration of the lead ion is 1 molar. Concentration of the Ag plus ion is 1 molar. That means our cell is in the standard condition. And since cell is in the standard condition, I can just write down here, since given cell is in the standard condition, its standard potential is E0 cell. See here, since given cell is in the standard condition, its standard potential is E0 cell. Correct. Now they have asked the question here, if the concentration of the ion in the anode side, see, this is anode and this is cathode. So if the concentration of the ion, this is the ion on the anode side, lead Pb2 plus. If the concentration of the ion in the anode compartment is increased by a factor of 10, what is the EMF of the cell? इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे lead का concentration 10 times अगर बढ़ा दिया, lead का concentration अगर 10 times मैंने बढ़ा दिया, मतलब cell is not going to be in the standard condition. lead का concentration जब तक 1 मोलार है तब तक हमारा cell standard condition में है. लेकिन अगर मैंने lead का concentration 10 मोलार कर दिया तो cell will not be in the standard condition. तो cell अगर मेरा standard condition में नहीं रहेगा तो मुझे क्या find out करना पड़ेगा? E cell. E cell. तो उन्हें वही बोला है कि अगर मैंने lead ion का concentration 10 times से अगर बढ़ा दिया, then what is the EMF of the cell? तो वो जो हमारा सेल बनेगा उसका EMF कितना रहेगा, करेक्ट, वो उन्होंने बोला. ओके, तो here first I will just write down here the oxidation reaction for this cell. So I just write down at anode. Which reaction occurs at anode? Any idea? अभी सबको आना चाहिए. Which reaction occurs at anode?
Oxidation. Yes, the reaction taking place at anode is oxidation half reaction. Yes, oxidation half reaction. And in the oxidation half reaction, the charge of the element goes on increasing. Charge of the element goes on increasing. So what will get here? Pb gives you Pb2 plus 2 electron. Now directly. Pb1, charge on the left hand side is 0, so plus 2 and minus 2 is 0. Here, cathode, this is a cathode. So at cathode, the reaction taking place is reduction half reaction. ये हमारा कैथोड है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन होगा. लेकिन क्या यहाँ पे Ag प्लस विल बिकम Ag, तो यहाँ पे आएगा Ag प्लस विल बिकम Ag. और देखो यहाँ पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे चार्ज +1 है और यहाँ पे चार्ज 0 है. तो चार्ज ऑफ द एलिमेंट इज डिक्रीजिंग एंड रिडक्शन ऑकर्स विद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Reduction occurs with gain of electron. Okay. Then in this case here, Ag plus plus electron gives you Ag. Okay, this is equation number 1. This is equation number 2. But now here, if I want to add both the equation, the number of electron has to be the same. So to make the number of electrons same, equation 2, I have to multiply by 2. So equation 2, so I can write here, multiply equation 2 by 2. Multiply equation 2 by 2. So what do you get here? 2Ag plus 2 electron gives you 2Ag. आप डायरेक्टली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन just make it more clear, I'm adding here equation. So multiply equation 2 by 2, correct? So now I can add, this is equation number 1. This is equation number 3. दोनों को add कर सकते हो. Because the number of electron released at anode are 2 and number of electron gain at cathode are also 2. Correct? तो यहाँ पे 2 electron release हो रहे और यहाँ पे 2 electron gain हो रहे. Correct? तो क्या होगा देखो, फिर अगर मैं ऐड करूंगा तो Pb gives you Pb2 plus 2 electron, 2Ag plus 2 electron gives you 2Ag. तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कैंसिल हो जाएंगे. करेक्ट? देन व्हाट इज हियर? आई एम गेटिंग Pb मेटल plus 2Ag plus gives you Pb2 plus 2Ag. Pb plus 2Ag plus A. Pb2 plus Ag. Okay, we got. Now normally metal is in the solid state. Okay. अभी उन्होंने क्या कर दिया, ये हमारा नॉर्मल सेल है. उन्होंने क्या बोला? एनोड कंपार्टमेंट. ये हमारा एनोड कंपार्टमेंट है. एनोड कंपार्टमेंट में लेड का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 टाइम्स बढ़ा दिया. ओके, सो इफ द कॉन्सेंट्रेशन of Pb2 plus ion is increased 10 times. Concentration of the lead ion is increased 10 times. अगर concentration of the lead ion increased by 10 times, then the cell becomes what? Cell will not remain as a standard cell. तो सेल अगर हमारा स्टैंडर्ड सेल नहीं रहेगा, करेक्ट, सेल मतलब लेड का कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स मतलब कितना बनेगा? तो व्हाट इज द लेड आयन ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन? 1 मोलर.
उसे 10 टाइम्स हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लेड विल बिकम 10 मोलर, और कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर मतलब नाउ सेल इज नॉट इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अगर हमारा सेल अभी स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, ई सेल। ई सेल, ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल। देखो आई रिपीट अगेन, in the beginning our cell is in the standard condition, and because our cell is in the standard condition हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिलेगा। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस, 2। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस आर 2, करेक्ट। और बाद में उन्होंने क्या बोला कि अगर इस सेल का लेड आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 टाइम्स हमने बढ़ा दिया तो लेड का कॉन्सेंट्रेशन 10 होगा, मतलब अभी 1 मोलर नहीं है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई सेल। तो अभी हम इस इक्वेशन के लिए हमें ई सेल फाइंड आउट करना है। ओके, 1 मिनट। E cell. Now what is the formula for E cell? E cell equal to E0 cell minus 0.0592 upon n log to the base 10 concentration of the product upon concentration of the reactant. Okay. ओके, हमें ई सेल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे E0 सेल ऐसे रखना है माइनस 0.0592, and how many electrons are involved in the process, 2. So number of electron involved in the process are 2 divided by 2 log to the base 10 concentration of the product। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है हमारा, Pb2 plus and Ag, Pb2 plus and Ag। तो I'll write here concentration of Pb2 plus and concentration of Ag, लेकिन Ag का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 will be written as the power, correct। So Ag square divided by concentration of the reactant। reactant में क्या है देखो, Pb in the solid state and Ag plus ion coefficient 2। so here we'll write concentration of Pb into concentration of Ag plus ion and square, because the coefficient 2 था। now again I'll write here E0 cell minus divide करो 2 से 0.0296 log to the base 10। लेड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया हम लोगों ने, 10 मोलर, 10। Ag प्लस मेटल, एंड मेटल प्योर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना है, 1 स्क्वायर। लेड प्योर मेटल कॉन्सेंट्रेशन 1, एंड Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में ही 1 मोलर दिया हुआ है। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में ही 1 मोलर दिया, वो चेंज नहीं हुआ है तो 1 मोलर ही देना है। तो यहाँ पे आएगा 1 square। So here we get E0 cell minus 0.0296 log, देखो 1 square is 1, 1 multiplied by 10, 10, 1 square is 1 into 1, 1, so 10 upon 1, 10 log of 10 to the base 10, and we know that log of 10 to the base 10 is 1, so here we get E0 cell minus 0.0296 E cell। ये हमारा आंसर हुआ। तो व्हाट दे आस्क्ड द क्वेश्चन कि अगर हम लोगों ने लेड आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 टाइम्स बढ़ा दिया तो हमें जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना रहेगा, हमें जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना रहेगा। तो सी हियर, नाउ आई एम सेइंग द क्वेश्चन, if the concentration of the ion in the anode compartment is increased by a factor of 10, the EMF of the cell will be, मतलब हमारा जो सेल का जो EMF मिलेगा will increase by 10, will increase by 0.0296, will decrease by 10 और will decrease by 0.0296। तो देखो क्या होगा,
हमें जो सेल पोटेंशियल जो यहाँ पे मिलेगा, ये हमारा स्टैंडर्ड सेल था, स्टैंडर्ड सेल से ये हमारा स्टैंडर्ड सेल है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स बढ़ाने के बाद क्या हुआ, स्टैंडर्ड सेल से ये वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा, ई सेल। तो हमें जो ई सेल मिलेगा which will be less, which will be decreased by 0.0296 than the E0 cell. Correct? So हमारा आंसर जो यहाँ पे डी आंसर है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर डी है। मतलब अगर मैंने लेड आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स बढ़ा दिया तो मुझे जो ई सेल मिलेगा वो मेरे स्टैंडर्ड सेल से कितना माइन कम होगा, स्टैंडर्ड सेल से कितना कम होगा, 0.0296 से कम होगा। करेक्ट, 0.0296 वोल्ट से कम। ओके, आ रहा है समझ में सबको ये न्यूमेरिकल? यस, ओके, ठीक। तो now we have solved the numerical of the Nernst equation. Okay, we have solved the numerical of the Nernst equation. मैं आज तुम्हें थोड़े न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए भी दे दूंगा, लेकिन बिफोर आई गो फॉर द नेक्स्ट टाइप, मुझे एक टाइप के इलेक्ट्रोड में डिस्कस करना है थोड़ा यहाँ पे। द नॉन मेटल नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रोड एंड सिंगल इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ सेल। सिंगल इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ सेल। लेकिन पहले नॉन मेटल आयन का मतलब क्या होगा, देखो अभी तक हम लोग ने जितने भी इलेक्ट्रोड देखे, अभी तक जितने भी, देखो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, मेटल आयन, सिल्वर मेटल आयन। तो यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने अभी तक जितने भी एग्जांपल किए वो क्या थे, मेटल आयन के इलेक्ट्रोड थे। आई जस्ट शो यू सम मोर एग्जांपल। देखो यहाँ पे जिंक मेटल आयन, तो मेटल आयन इलेक्ट्रोड। क्रोमियम मेटल आयन इलेक्ट्रोड। करेक्ट, मेटल आयन। तो इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, आयंस के बाद आ जाएगा मेटल। करेक्ट। तो अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको जो बता रहा हूँ, कौन से टाइप का इलेक्ट्रोड है, आपको इसके बारे में मैंने बुक के भी मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन उन्होंने न्यूमेरिकल में कहीं कहीं इंक्लूड कर दिया। तो नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रोड, इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो पहले सबसे मैं इनका यहाँ पे बताऊंगा representation, or here I'll write down their half cell reaction. How to represent, how to write down the half reaction. The first one. Can anyone tell me normally how do we write the half cell? अगर मुझे कोई हाफ सेल लिखना रहेगा, हाफ सेल, तो हाफ सेल कैसे लिखोगे? अगर मुझे हाफ सेल रिप्रेजेंट करना है तो हाफ सेल कैसे लिखोगे? यस, सबसे पहले क्या लिखोगे? कैथोड। नहीं, हाफ सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। सेल अगर मैं बोलूंगा तो लेफ्ट साइड में आएगा एनोड, राइट साइड में आएगा कैथोड, और फिर उनके इंटीरियर में खाली हाफ सेल। अगर मुझे खाली हाफ सेल लिखना है तो हाफ सेल में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, आयन। आयन के बाद क्या लिखते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर रहेगा तो, और गैस अगर रहेगा तो, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं मेटल। ये हमारा नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब अगर मुझे कोई भी हाफ सेल अगर रिप्रेजेंट करना रहा तो सबसे पहले मैं लिखूंगा आयन। आयन के बाद क्या लिखना है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस और गैस, लेकिन रहेगा तो, और बाद में मेटल। ओके, लेकिन अभी तक जितने भी हम लोग ने इलेक्ट्रोड किए वहां पे हमारे पास आयन था और हमारे पास मेटल था, इसलिए ये स्किप किया था। तो ये नॉर्मल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हाफ सेल। अभी देखो, अगर मुझे फर्स्ट वन, अभी मुझे बोलो अगर मुझे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड लिखना है, मुझे क्या लिखना है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड लिखना है, तो बोलो कैसे लिखोगे? इस फॉर्म में हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कैसे लिखोगे? पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, आयन।
कौन सा आयन लिखोगे हाइड्रोजन का? H+ आयन है, करेक्ट, यस करेक्ट, हाइड्रोजन आयन है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं तो स्टैंडर्ड लिख सकते हो, तो स्टैंडर्ड के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना लिखोगे? 1 मोलर। इन कॉन्टैक्ट विथ हाइड्रोजन के पास गैस होता है, तो यहाँ पे लिखोगे H2 गैस, और गैस का प्रेशर हम लोग एज्यूम करें 1 एटमॉस्फेयर। इन कॉन्टैक्ट विथ मेटल, अभी लेकिन यहाँ पे मेटल कौन सा होगा? तो हाइड्रोजन के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए क्या यूज करना है? प्लैटिनम। अभी तुमने यहाँ पे प्लैटिनम क्यों कि देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पे H+ आयंस है, मैं इसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास कर रहा हूं, तो कांटेक्ट सर्किट कनेक्ट करने के लिए कुछ मेटल चाहिए। तो सर्किट कनेक्ट करने के लिए कौन सा मेटल यूज करना है हमें? प्लैटिनम यूज करना है। क्यों प्लैटिनम? बिकॉज प्लैटिनम डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन, बिकॉज वी नो दैट द प्लैटिनम इज द इनर्ट मेटल, बिकॉज वी नो दैट द प्लैटिनम इज द इनर्ट मेटल, ये इनर्ट मेटल है। अगर बोले यहाँ पे मैग्नीशियम यूज किया, सर्किट कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। अगर मैंने यहाँ पे जिंक मेटल यूज कर दिया, जिंक विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे प्लैटिनम यूज करना। तो ये हमारा हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, करेक्ट। अब ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड लिखने के बाद में सेकंड इलेक्ट्रोड पहले लिख देता हूँ। सेकंड इलेक्ट्रोड आई राइट क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, क्लोरीन गैस। लेकिन उसके पहले यहाँ पे देखो मैंने लिखा था नॉन मेटल, तो ये हमारा नॉन मेटल है। किसके कांटेक्ट में आएगा? नॉन मेटल आयन, तो ये हमारा नॉन मेटल गैस है इन कांटेक्ट विथ नॉन मेटल आयन, ओके। उसके बाद अगर मुझे क्लोरीन का लिखना है, क्लोरीन भी गैस इलेक्ट्रोड है, क्लोरीन भी गैस इलेक्ट्रोड, तो कैसे लिखोगे? गैस के लिए आयन, फिर गैस, फिर मेटल, तो बोलो मुझे क्या लिखोगे? क्लोरीन। क्लोरीन के पास कौन सा आयन होता है? Cl-। Cl-, करेक्ट, Cl- आयन है। अगर मैंने इसको लाइक कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, इन कॉन्टैक्ट विथ क्लोरीन गैस का फॉर्मूला Cl2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर एंड इन कॉन्टैक्ट विथ प्लैटिनम, ये क्लोरीन गैस हुआ। देखो ये गैस है और ये गैस का आयन है, ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल आयन है, ओके। आई जस्ट राइट 2 मोर एंड देन हम लोग सबका हाफ रिएक्शन लिख देते हैं, हाफ रिएक्शन। Third is bromine gas electrode, ब्रोमीन गैस इलेक्ट्रोड। तो ब्रोमीन कैसे लिखोगे? सबसे पहले ब्रोमीन का आयन रहेगा Br-, having concentration 1 molar in contact with bromine gas in contact with platinum, ये ब्रोमीन। एंड लास्ट आयोडीन गैस इलेक्ट्रोड, आयोडीन इलेक्ट्रोड अगर लिखना है तो क्या आएगा? I-, concentration 1 molar in contact with iodine gas in contact with platinum। ये हमारे 4 इलेक्ट्रोड्स है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप मतलब यू मे कम अक्रॉस में सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे क्या ध्यान में रखना है, अगर मुझे सिंगल इलेक्ट्रोड अगर लिखना रहेगा तो सिंगल इलेक्ट्रोड का फॉर्मेट क्या आता है? आयन। आयन के बाद क्या आएगा? इनसॉल्युबल सब्सटेंस और गैस। लेकिन हर बार नहीं आएगा, यहाँ पे नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रोड इसीलिए आ गया। लेकिन अगर हमारा मेटल इलेक्ट्रोड होता तो मेटल में क्या लिखते हैं हम लोग? आयन लिखते और मेटल लिखते। लेकिन ये गैस इलेक्ट्रोड है इसलिए आयन भी आ गया, गैस भी मिला और मेटल भी मिला, करेक्ट। तो ये हो गए चारों इलेक्ट्रोड। अभी इनके बाद मुझे हाफ रिएक्शन लिखना है, मुझे यहाँ पे हाफ रिएक्शन लिखना है। अभी मुझे कोई बोलेगा यहाँ पे कौन सा हाफ रिएक्शन लिखोगे? यहाँ पे कौन सा हाफ रिएक्शन लिखोगे? रिडक्शन, यस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर, अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर जब हम लोग हमारा सेल, जब हमारा हाफ सेल रिप्रेजेंट करते हो, ये भी कैथोड के फॉर्म में ही है, तो हाफ सेल का रिएक्शन हमेशा कौन सा लिखना है हमें? हाफ सेल के लिए हमेशा रिएक्शन कौन सा लिखोगे? रिडक्शन, कंपल्सरी।
कोई तुम्हें बोलेगा नहीं, लेकिन अगर तुम्हें हाफ सेल दिया हुआ है तो हाफ सेल का रिएक्शन हमेशा कौन सा लिखोगे? रिडक्शन, अकॉर्डिंग टू द IUPAC nomenclature. Okay, what is reduction? Charge of the element goes on decreasing. तो हमारे पास दो है, यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे H2 है, तो दोनों में से लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे? दोनों में से लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे? H प्लस, यस H प्लस. राइट साइड में लिखोगे H2, क्योंकि यहाँ पे चार्ज +1 है और यहाँ पे चार्ज 0 है, तो चार्ज ऑफ द एलिमेंट इज डिक्रीजिंग, इसे रिडक्शन. और बाद में रिडक्शन मतलब इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दो, ये रिएक्शन हुआ. अभी बैलेंस करो, H2 है तो यहाँ पे 2H लिख दो, ये हो गया. और फिर अभी चार्ज बैलेंस करो, जिस साइड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस साइड में इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे कितना चार्ज हमें दिखाई दे रहा है? 0 है, इसके लिए यहाँ पे +2 और यहाँ पे क्या लिखूंगा? -2. ये रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हो. और सेम रिएक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे मैं हाफ लिखूंगा, तो ये भी करेक्ट है. देखो 1H हाफ इंटू 2 1H, यहाँ पे चार्ज 0 है, +1 -1. The half reaction you may write with 2 electron or you may write with 1 electron, both the way it is correct. क्योंकि जब हम लोग इक्वेशन ऐड करते हैं हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कर देते हैं, करेक्ट. तो सिंपल है, तुम्हें कोई लर्न नहीं करना है, यहाँ पे खाली दिखना है चार्ज किसका डिक्रीज हो रहा है? H प्लस का H2 हो रहा है. ओके, अभी क्लोरीन का हाफ रिडक्शन लिखना है, तो यहाँ पे दो है, एक है हमारे पास Cl- और यहाँ पे हमारे पास है Cl2. तो रिडक्शन यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन. तो नाउ टेल मी हियर, आप लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे और राइट साइड में क्या लिखोगे? Cl2 ऑन द लेफ्ट, यस करेक्ट, Cl2 ऑन द लेफ्ट, क्योंकि इसका चार्ज 0 है और इसका चार्ज है -1, तो Cl2 विल बिकम Cl-, करेक्ट है. बिकॉज कभी भी ध्यान दो, गलती से तुम बोलेगे यहाँ पे H प्लस लिखा है इसलिए Cl नहीं, चार्ज देखना, इसका चार्ज 0 है और इसका चार्ज -1 है. चार्ज ऑफ द एलिमेंट हैज टू गो ऑन डिक्रीजिंग, करेक्ट. और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लिखोगे? लेफ्ट साइड में लिखोगे. देखो Cl2 है, Cl2 है, जिस साइड में इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे कितना चार्ज है? -2. एक Cl का चार्ज -1, दो Cl का चार्ज कितना आएगा? -2. अब यहाँ पे देखो इधर 0 है तो यहाँ पे आ रहा है -2. अब ऐसे भी इक्वेशन को लिख सकते हो, और अब ऐसे लिख सकते हो हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cl-. देखो हाफ इंटू 2 1 1, यहाँ पे चार्ज है -1, यहाँ पे तो चार्ज नहीं है और यहाँ पे चार्ज है -. इक्वेशन बैलेंस, करेक्ट. गो फॉर नेक्स्ट. अभी यहाँ पे बोलो लेफ्ट, इधर भी हमें क्या लिखना है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. नाउ इन द रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलो लेफ्ट साइड में क्या? रिडक्शन में ध्यान में रखना, चार्ज ऑफ द एलिमेंट हैज टू गो ऑन डिक्रीजिंग, तो किसका चार्ज डिक्रीज होगा? लेफ्ट में क्या आएगा और राइट में क्या आएगा? लेफ्ट में क्या आएगा? यस, लेफ्ट साइड में लिखोगे Br2, यस राइट साइड में लिखोगे Br-, बिकॉज इसका चार्ज है 0 और इसका चार्ज है -1. 0 to -1 चार्ज इज डिक्रीजिंग. रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. Br2, तो ये 2Br एटम बाय चार्ज, यहाँ पे चार्ज है -2, तो यहाँ पे भी चार्ज रहेगा -2, ऐसे लिख सकते हो. और अगर आपको ये रिएक्शन ऐसा नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हो आप, हाफ Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Br-. ये हमारा रिडक्शन, करेक्ट. एंड लास्ट रिडक्शन रिएक्शन, लास्ट
last will be like here. I'll again write down the reduction half reaction. Yes. Left side I will write here I2 giving I minus. Charge of the iodine goes on decrease. Reduction means I will write electron on the left. ध्यान में रखना, reduction मतलब electron कहाँ पे आना चाहिए? Left side में, and oxidation मतलब electron कहाँ पे आना चाहिए? Right side. Okay. तो यहाँ पे I2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -2 ऐसे लिख सकते हो. और half I2 plus electron gives I minus. Reduction, correct? So this topic you may require while solving the numerical. इसलिए मैंने दिया. तो ये अभी हमारा Nernst equation का पार्ट थोड़ा कंप्लीट हो गया है, करेक्ट? Now I'm going on the next heading. सॉरी, Nernst equation का और एक टाइप का प्रॉब्लम बाकी है, मैं सॉल्व करता हूँ. देखो अभी हमने Nernst equation किया क्या? सेल्फ पोटेंशियल फाइंड आउट किया. Now we can say by using Nernst equation, I'll just write down the numerical only. Page 106. Problem 5.11. उन्होंने दिया हुआ है the standard potential of the electrode. The standard potential of the electrode is minus 0.76 volt. मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, सेल की बात नहीं करें हम, सिंगल इलेक्ट्रोड की बात, अगर हमारा इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में रहेगा तो उसका पोटेंशियल कितना है? 0.76 है, करेक्ट? So they have given the half cell Zn2 plus having concentration 0.02 molar in contact with Zn in the with state solid. Zn2 plus concentration 0.02 molar in contact with Zn. Okay, calculate its potential. Calculate its potential. इसका पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, करेक्ट? तो अभी देखो यहाँ पे अगर हमारा इलेक्ट्रोड मतलब अगर मेरा जिंक का कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलार होता, 1 मोलार, तो 1 मोलार के लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? -0.76. लेकिन यहाँ पे हमारा जिंक इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं तो उसका क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल. और कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रोड हो या सेल हो, अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं रहेगा तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? नर्स्ट इक्वेशन. तो अभी नर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड क्या रहेगा? देखो, द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड माइनस 0.0592 upon n log to the base 10 concentration of the product divided by concentration of the reactant. मतलब फॉर्मूला सेम ही है. अरे क्या यहाँ पे हम लोग सेल लिखते थे, सेल की जगह मुझे क्या लिखना है? क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रोड है, सिंगल इलेक्ट्रोड, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? इलेक्ट्रोड. यहाँ पे Zn लिख सकते हो, Zn लिख सकते हो, या इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हो, सिंगल इलेक्ट्रोड. तो ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन है जो पहले हमने किसे अप्लाई किया था? सेल के लिए, जब हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं था. अभी हमारा इलेक्ट्रोड है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रोड भी स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, दूसरा और इलेक्ट्रोड नहीं दिया है, तो उसके लिए कैसे? तो सेम थिंग, सबसे पहले इसका हाफ रिएक्शन लिखो. इस इलेक्ट्रोड का हाफ रिएक्शन लिखो. कौन सा हाफ रिएक्शन लिखोगे? इस इलेक्ट्रोड के लिए यस रिडक्शन. ध्यान में रखना, क्योंकि हमेशा अगर हमें कुछ बोला नहीं है, खाली इसका हाफ रिएक्शन लिखना है, मतलब अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर कौन सा होगा? रिडक्शन.
तो अभी मैं इसका रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ. देखो रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन मतलब व्हाट, चार्ज ऑफ द एलिमेंट शुड गो ऑन डिक्रीजिंग, चार्ज ऑफ द एलिमेंट शुड गो ऑन डिक्रीजिंग. तो लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे फिर, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, यस लेफ्ट साइड में लिखोगे Zn2 प्लस. Zn2 प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा, Zn. तो चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे चार्ज है +2, यहाँ पे चार्ज है 0. और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे चार्ज +2 है तो यहाँ पे आएगा -2. ये हमारा हाफ रिएक्शन, ये हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया. नाउ आई कैन यूज द फॉर्मूला हियर. E0 इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है. कितना स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है, -0.76 माइनस 0.0592 अपॉन n मतलब इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, 2. log to the base 10 प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्शन है. अभी प्रोडक्ट कौन है, जिंक. रिएक्टेंट Zn2 प्लस, बस लिखा. उसके बाद सेम है, मतलब प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है हमारा और ये रिएक्टेंट है. तो -0.76 माइनस 0.0296 मैंने 2 से डिवाइड कर दिया. log to the base 10, ये Zn है, but Zn is in the which state, solid, concentration 1. Zn2 plus concentration 0.02, 0.02, ओके 0.02. तो अभी एक काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे -0.76 माइनस 0.0296, ये 1/0.02 है. अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, देखो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है, ये 1/0.02 है. अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, मतलब अगर मैंने ऐसा लिखा 0.02/1 log to the base 10, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा log का साइन जो प्लस है वो कैसे बनेगा, माइनस. करेक्ट. ऑलवेज ध्यान में रखना, अगर मुझे log x अपॉन y को log y अपॉन x में अगर कन्वर्ट करना है तो प्लस विल चेंज टू माइनस. तो यहाँ पे प्लस साइन था, लेकिन इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद यहाँ पे माइनस. अभी क्या करोगे, ये माइनस और ये माइनस क्या बनेगा, प्लस. तो हियर विल हैव 0.76 प्लस 0.0296, ओके, और इनटू log टू द बेस 10 में इसे 0.02 क्या लिखूंगा, 2 × 10⁻², 0.02 को मैंने क्या लिखा, 2 × 10⁻². करेक्ट. तो आप देखो यहाँ पे -0.76 प्लस 0.0296 इंटू log a इंटू b, log a इंटू b. तो मैं क्या लिखूंगा, log of 2 to the base 10 प्लस log of 10⁻² to the base 10, log of a प्लस log of b क्या है, 10⁻². ओके. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो -0.76 प्लस, नर्स इक्वेशन में क्या होता है, खाली कैलकुलेशन बहुत बढ़ता है, 0.0296 इंटू log of 2 मतलब 0 पॉइंट, और 2 का log कितना होता है, 3010. ओके थैंक यू, 3010. और यहाँ पे देखो ये पावर है, -2 पावर है, तो पावर पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा -2. एंड log of 10 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना होता है, 1. तो ये आएगा हमारा आंसर. यहाँ 2 का log 0.3010, और ये -2 जो पीछे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, तो -2 एंड log of 10 टू द बेस 10 इज 1. ये वो अभी यहाँ पे 0.76 प्लस 0.0296 इंटू, नाउ 2 में से इस नंबर को माइनस करो, 2 से इस नंबर को माइनस करो, तो क्या आएगा, देखो 2 माइनस 0.3010,
So here how much we got? Minus 1.6990. 2 में से इस नंबर को मैंने माइनस कर दिया तो क्या मिला? माइनस 1.6990 और ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या बनेगा? माइनस बनेगा. जस्ट टर्न द पेज. देखो इक्वल टू माइनस 0.76 प्लस इंटू माइनस माइनस एंड 0.0296 इंटू 1.6990, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो माइनस 0.76 माइनस, इसे मल्टीप्लाई करो, लॉग से करना पड़ेगा लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा. डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो. 0.0296 को 1.6990 से मल्टीप्लाई करो. जीरो पॉइंट 0.05029. ओके, और नाउ आई जस्ट ऐड दिस नंबर. तो यहाँ पे क्या होगा? देखो 0.76 माइनस और यहाँ पे 0.05029. अगर मैं ऐड करूंगा यहाँ पे तो कितना मिलेगा? 9206 प्लस 5 11 8 0 point. I got the answer here 0.81029 minus, that is E electrode. E electrode मतलब अगर हमारा सेल, देखो अगर हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में तो पोटेंशियल कितना था? माइनस 0.76 था. लेकिन अभी हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है तो उसका पोटेंशियल कितना आएगा? माइनस 0.81. करेक्ट. इस टाइप का मैं और एक न्यूमेरिकल करता हूँ, इलेक्ट्रोड वाला. 1 मिनट. सबको समझ में आ रहा है कि ये न्यूमेरिकल? किसी कोई डाउट है? Okay, I'll just write down here. Using Nernst equation. Using Nernst equation, calculate the potential. Calculate the potentials of the following हाफ सेल. मतलब उन्होंने हमें एक हाफ सेल दिया हुआ है. कौन सा हाफ सेल दिया है? देखो यहाँ पे उन्हें रिएक्शन ही दिया है, Cu2 प्लस aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन यूज Cu प्लस. इस इक्वेशन दिया. देखो ये उन्होंने एक हाफ सेल मतलब रिएक्शन दिया हुआ है, डायरेक्टली हाफ रिएक्शन दिया हुआ है. सो दे हैव गिवन अस हाफ रिएक्शन. हाफ रिएक्शन कौन से फॉर्म में हमेशा लिखना है? हम हाफ रिएक्शन हमेशा कौन से फॉर्म में लिखना है? रिडक्शन. और रिडक्शन के फॉर्म में देखो यहाँ पे चार्ज +2 है और यहाँ पे चार्ज +1 है. +2 बिकमिंग +1 तो डिक्रीज, रिडक्शन है. और बैलेंस करो Cu1. जिस साइड में इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे चार्ज कितना है? देखो +1 है. तो यहाँ पे देखो +2 एंड -1, +2 एंड -1 +1. तो दोनों साइड में एटम भी सेम है और दोनों साइड में चार्ज भी सेम है. करेक्ट. ये हाफ रिएक्शन दिया हुआ है. और उन्हें और एक इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? कॉपर +1 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है
0.1 मोलर। कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.05 मोलर और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +1 इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड 0.153 वोल्ट। देखो उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। इस हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट कैसे, बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। हम लोग नर्स्ट इक्वेशन यूज करें मतलब क्लियर है कि ये जो हमारा हाफ सेल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। पता चल देखो कॉपर +1 का 0.1, कॉपर +2 का 0.05, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं। इसका मतलब ये हमारा जो हाफ सेल है, ये हमारा हाफ सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे और इसका उन्होंने स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है, तो अभी सेम फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें, नर्स्ट इक्वेशन E इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू E0 इलेक्ट्रोड माइनस 0.0592 upon n log to the base 10 concentration of the product divided by the concentration of the reactant। ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड है, नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड। ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिखो, नहीं तो ऐसा लिखो कॉपर +1 कॉपर 2, ऐसे लिखो। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आयंस है, यहाँ पे भी आयंस। इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.153 माइनस 0.0592 अपॉन n, n मतलब इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन दिस इक्वेशन, 1 log to the base 10 concentration of the product, ये हमारा प्रोडक्ट है कॉपर +1, कॉपर +1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉपर 2+, यहाँ पे मेटल नहीं, कॉपर +1 और यहाँ पे कॉपर 2+, 0.153 डिवाइड करो 1 से तो 0.0592 log to the base 10, copper +1 is 0.1, copper +2 is 0.05, 0.153 minus 0.0592 log to the base, डिवाइड करेंगे हम लोग। एक काम पावर फॉर्म में मैं लिखता हूँ, 0.1 10⁻⁻1, 5 into 10⁻², 0.1 can be written as 10⁻⁻1, 0.05 can be written as 5 into 10⁻², यहाँ पे आएगा 1 into 10⁻⁻1, यहाँ पे 5, 0.153 minus 0.0592 log to the base 10। देखो यहाँ पे क्या बचा 1/5, 1/5 मतलब कितना आएगा 0.2, 1/5 मतलब 0.2 इंटू 10⁻⁻1 और ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा +2, 1/5 मतलब क्या आएगा 0.2, ये 10⁻⁻1 और ये -2 ऊपर रहेगा तो क्या बनेगा +2, 0.153 इंटू ये 0.2 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 10⁻⁻1, 0.2 को मैंने क्या लिखा 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू, और यहाँ पे क्या आएगा देखो 10⁻⁻1 एंड +2, तो यहाँ पे आएगा 10⁻+2, -1 +2 is +1 and this 10⁻⁻1 and this 10⁻+1 both will get cancelled. Okay. What is remaining here? 0.153 minus
0.0592 into log of 2 to the base 10. It can log of 2, and then here 0.153 minus 0.0592 into log of 2 क्या लिखोगे 0.3010. इनका मल्टीप्लीकेशन कर, आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा, लॉग से करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है अभी मुझे लॉग से बोलो. 0.0592 को अगर मैं 0.301 से मल्टीप्लाई करूं देखो कितना आ रहा है. सर 0.0178. 0.0178. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड करूंगा यहाँ पे दोनों नंबर को तो देखो क्या आएगा 0.153. सॉरी ये माइनस और ये प्लस है, तो ये प्लस है और माइनस क्या करना पड़ेगा 0.0178 करना पड़ेगा. तो 0.153 is a bigger number which is a plus and 0.017 is smaller number. We will subtract here. So yes, I'm getting plus 0.1352 volt electrode. So yes, this is our potential. We got 0.1352 volt. Okay. So with this we have finished the Nernst equation. We have मतलब हमने क्या किया है Nernst equation इलेक्ट्रोड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और Nernst equation सेल के लिए भी अप्लाई. खाली ध्यान में रखना Nernst equation कभी यूज करना कि अगर हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं रहेगा. तो देखो यहाँ पे अगर हमारा इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में होता तो पोटेंशियल कितना मिलता 0.153, लेकिन हमारा इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है इसीलिए हमें पोटेंशियल कितना मिल रहा है 0.1352 मिल रहा है. ओके, किसी कोई डाउट है यहाँ पे? यस, प्लीज राइट डाउन द न्यूमेरिकल नोटबुक में लिखो. ठीक है, ओके. आज मैं क्या करूंगा, आज आपको एक प्रॉब्लम शीट भेज दूंगा. एक प्रॉब्लम शीट का पीडीएफ तुम्हें भेजने वाला हूँ, बरोबर.